Hello, I'm back here with the new video and today I will be starting a new topic, that is triangles. In your previous classes you studied many things about a triangle, starting with the definition of triangle, then you must have studied the elements of triangle, then congruency, types of triangles according to the sides, according to the angles, and now in class 10th the topic is about similarity. So before going to similarity, I just want to cover certain points related to the basic concepts of triangle. So I will be starting with the simple terms which you must have studied in your previous classes. So today I just want to start here with the definition of triangle. So you must be knowing the definition, that is ट्राइंगल की जो डेफिनेशन है इसमें सिंपल सी डेफिनेशन है. As the name suggests, the tri here it is made up of two words, tri and angle. So it is a simple closed figure having three sides. ऐसा क्लोज फिगर जो बहुत सिंपल हो, मतलब उसमें कोई भी साइड जो है ओवरलैप ना करे, जिसमें तीन साइड्स हो, हम उसको ट्राइंगल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस. हियर वी हैव थ्री साइड्स AB, BC and AC. So this is all about the definition. Now in your previous classes you must have studied about the elements of triangle. Elements of a triangle. First thing you must have studied is sides. So here if we talk about this particular triangle, the sides are AB, BC and CA. The sides are AB, BC and CA. Then you must have studied about the angles. There are total 3 angles as well as 3 sides. So the angles clearly here are angle A, angle B and angle C. But when we use three vertex notation, we have to write angle A as, angle A को हम कैसे लिखते हैं, एंगल जो एंगल हम लिखना चाह रहे हैं उसका जो वर्टेक्स है वो बीच में लिखा जाता है. मीन्स एंगल A को हम लिखेंगे BAC या फिर CAB. So suppose I choose B as first, so BAC will be the name of angle A. If we talk about angle B, this can be written as angle ABC. And if we talk about angle C, this can be written as angle BCA. So this is how we write the angles in three vertex notation. तो यहाँ पर जो सेंटर में है वो इसका वैल्यू हम लिखना चाह रहे हैं. So these are the elements of a triangle, and finally we have 3 points, that is A, B and C. These are called vertex. In plural form it is vertices of a triangle. So this is all about the simple term, that is definition of triangle and elements of a triangle, that is parts of a triangle. Now why I discussed all this? This is very important to discuss here. When we talk about the two terms I am taking here, that is congruency and similarity. First thing is that here we need टू ट्राइंगल्स. मैंने इससे पहले जो आपको बताया इसमें मैंने एक ट्राइंगल लिया था ABC, बट हम दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं. उसमें पहला टॉपिक जो है आपने क्लास 7 में भी पढ़ा था और 9th क्लास में भी ये आता है. देन वी हैव अ न्यू टर्म विद अस, दैट इज सिमिलरिटी. नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस टू टर्म्स. And to discuss these two terms, we cannot start with one triangle because we are discussing about some kind of relation or comparison. So here we have to take total 2 triangles. Suppose I am taking these 2 triangles. आप जब इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे तो लगभग एक जैसे दिख रहे होंगे. And if I name them as ABC and PQR. Now the meaning of these two things. सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमको 2 ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम कंपैरिजन किसी एक का उसी के साथ तो करेंगे नहीं.
इसलिए हमको दो ट्रायंगल लेना है। तो कॉन्ग्रुएंसी जो और सिमिलरिटी जो प्रॉपर्टी हम बात करने वाले हैं वो किसी दो ट्रायंगल के कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड होगी। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो ट्रायंगल के बारे में है, तो मैं उसी के ऊपर अपना पूरा डिस्कशन ला रहा हूँ। लेटर ऑन आई विल डिस्कस अबाउट द सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी इन जनरल। Here when we talk about congruency it is very simple। अगर आप इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रख देते हैं, मान लो कि ये एक मॉडल होता और आप इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखते और ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेते, मीन्स ए और पी सेम पॉइंट हो जाते, बी और क्यू सेम पॉइंट हो जाते एंड सी और आर सेम पॉइंट हो जाते, तो हम इसको बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है। Congruency means they are equal in every aspect. Every aspect is, what are these aspects? What I discussed in the just now in my previous part, that is elements. In all we discussed about 6 elements, that is 3 sides and second was 3 angles. So when we talk about they are similar, they are equal in every aspect, it means we have 3 sides and 3 angles, total 6 elements of triangle and they all are identical। means एंगल A जो होगा वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है एंड AB और PQ इक्वल आएंगी, BC एंड QR इक्वल आएंगी, AC और PR इक्वल आएंगी। तो जब ये टोटल 6 एलिमेंट है सारे इक्वल हो जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जब हम इस ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराने की कोशिश करेंगे देन दे विल ओवरलैप ईच अदर एंड दिस इज द कंडीशन विच वी कॉल कॉन्ग्रुएंसी। इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल ओवरलैप ईच अदर। और कॉन्ग्रुएंसी तब होती है जब वो ट्रायंगल हर एस्पेक्ट में एक जैसे हो, मतलब उनकी एंगल्स का मेजर सेम हो और उनकी साइड्स भी सेम हो, देन ओनली वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम इन जनरल बात करें कॉन्ग्रुएंसी की। सपोज इफ वी टॉक अबाउट द बुक ऑफ मैथ बुक, सपोज आपकी जो मैथ बुक है NCERT, अगर आप बहुत सारी बुक्स को लेंगे क्योंकि ये एक ही पब्लिकेशन से पब्लिश होती है, NCERT इसको पब्लिश करती है, तो जब हम इन बुक्स को एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे एंड इफ यू टॉक अबाउट द टॉप व्यू, suppose this is the mathematics book, here we have 2 books, if you want to put it over it, हम ये देखेंगे कि जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमको 2 बुक की बजाय एक ही बुक दिखेगी। इसका मतलब ये है कि दिस फिगर, द टॉप व्यू ऑफ दिस बुक इज कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते होंगे कि जब आप उनको एक के ऊपर एक रखते हैं तो आपको सिर्फ एक ही थिंग दिखाई देती है। तो ये सब जो होता है वो कॉन्ग्रुएंसी है। मीन्स इन जनरल अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी तब होती है जब वो सारे एस्पेक्ट्स में सेम हो जाए। जैसे एक बुक है वो उसका टॉप व्यू रेक्टेंगल होता है, तो वो कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनकी लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाए। इफ वी टॉक अबाउट सर्कल, सर्कल की जो डायमेंशन है वो रेडियस से डिफाइन होती है। अगर 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट है मतलब उनकी रेडियस इक्वल होगी, अगर रेडियस इक्वल है तो सर्कमफेरेंस भी इक्वल होगी और एरिया भी इक्वल होगा, तो वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगे। ऐसे ही सारे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। आपने पिछली क्लासेस में मीन्स इन 9 क्लास और इन 7 क्लास यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सो लेट मी डिस्कस अबाउट दैट। जो कंडीशन थी वो बेसिकली 4 कंडीशन आपने पढ़ी होगी। उसमें फर्स्ट कंडीशन, कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आई एम डिस्कसिंग हियर। कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, फर्स्ट इज साइड साइड साइड, सेकंड side angle side, third angle side angle, and the fourth one was right angle, hypotenuse and side. So these are the 4 conditions you must have studied in your previous classes. अब इनके बारे में बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट है। किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ा होगा,
in 9 class as well in your previous classes in 6 or 7 class. So जब आप ट्रायंगल बनाते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए? 3। तो यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। जैसे हम पहली कंडीशन की बात करें तो ये है साइड साइड साइड। व्हाट डज इट मीन? वी हैव 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स, अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दैट इज साइड साइड साइड। Second condition, if two sides and included angle. In first case, the sides are like this. This side is equal to this side is equal to this, and this side is equal to this. This is the condition of triple X. Now let us come to the second case, that is side angle side. In this case, two corresponding sides are equal, and the angle in between these two sides is equal. So in that case, this side is equal to this angle is equal to this, and the included angle is there. So we have to take this side equal to this side. So this is the condition of side angle side here. Now next is angle side angle. So for this third condition, we have to consider two angles. We are considering, if suppose this angle, then this will be equal to this, and then we have included side. So we can either take this side or this side. So suppose if I take this side which is equal, now then next thing is angle. So again we have to take this angle equal to this. So this is the condition of congruency, which is angle side angle. Angle, included side, and then second angle. Next we have RHS. So in RHS we need right angle triangle. As you know, right angle triangle can be proved congruent. So in this case, first thing is we need a right angle, so they will be equal always. So these two angles are equal, then hypotenuse will be equal, and if this is, then we have to look for the remaining two sides. If one of the sides, suppose these two sides are equal and the hypotenuse are also equal, then we can write that these two triangles are congruent based on the RHS condition, congruency condition. So these are the 4 rules by which we can prove the given triangles congruent. Now this is all about the congruency, but when we come to the similarity, it is a totally different topic. So now let us come to the concept of similarity of figures. So let us come to that part now. When we talk about similarity, as the word similar is here, what we can say, suppose we have a square and we have another square, but their size is different. In congruency, I told you that two figures are congruent if they are equal in every aspect. दो ट्राइंगल या कोई भी फिगर हो, वो कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब वो हर तरीके से इक्वल हो। यहाँ पर सिमिलरिटी में दोनों ही फिगर सेम प्रजाति के हैं, मतलब उनका टाइप सेम है। ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है, बट ये हर एक एस्पेक्ट में इक्वल नहीं होंगे। मीन्स अगर हम स्क्वायर ले रहे हैं तो दूसरा फिगर भी स्क्वायर होगा, ये जरूरी है सिमिलरिटी के लिए, बट ये जरूरी नहीं है कि वो सारे एस्पेक्ट में इक्वल हो। दैट इज व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द टर्म कॉन्ग्रुएंसी। अब यहाँ पर दोनों फिगर है स्क्वायर, बट वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मीन्स उनकी जो डायमेंशन है वो अब अलग अलग है। तो ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट ना बोल के सिमिलर बोलते हैं। सिमिलर क्यों? क्योंकि ये भी एक स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर, तो ये दिखने में स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे कि ये एक ही टाइप के फिगर हैं, तो ये सिमिलर होंगे। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट अ सर्कल विथ सम रेडियस r and if we take another circle with bigger radius capital R, now again they are of same type, वो सेम टाइप के हैं, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, they are similar but they are not congruent. So it is possible only when the radius are equal. जैसा कि मैंने congruency में बताया था कि दो सर्कल हमेशा congruent तब हो सकते हैं जब उनकी रेडियस इक्वल हो,
क्योंकि अगर रेडियस इक्वल होती है तो आप एरिया और सर्कमफेरेंस निकालेंगे, वो दोनों भी सेम आएंगे। तो यहाँ पर सिमिलरिटी में आप सिर्फ और सिर्फ रेडियस को देखें, अगर रेडियस सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर रेडियस सेम नहीं है तो दो सर्कल हमेशा सिमिलर बोले जाएंगे। सो दिस इज इन जनरल द मीनिंग ऑफ सिमिलरिटी। सो वी कैन से फॉर सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स, if shape is same, first thing is shape is same but the size, we can say dimensions are not same, such figures are called similar। ऐसे फिगर्स जिनकी शेप तो सेम है बट उनकी डायमेंशन या साइज जो है वो सेम नहीं है। नाउ दिस इज इन जनरल। अगर हम इसमें सर्कल की बात करेंगे तो उसकी डायमेंशन मीन्स रेडियस होती है। अगर उसकी रेडियस दोनों सर्कल है और अगर उसकी रेडियस इक्वल नहीं है तो हम दोनों सर्कल को सिमिलर बोलेंगे, और अगर रेडियस इक्वल हो जाएगी तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट फिगर्स, लाइक इफ वी हैव अ रेक्टेंगल, सपोज इनकी जो लेंथ, दो रेक्टेंगल हम लेते हैं, यहाँ पर ये दोनों ही रेक्टेंगल है बट उनकी डायमेंशन मीन्स इसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है, इसकी ब्रिथ 1 है, B1 है, इसकी B2 है। क्लियरली लेंथ और ब्रिथ जो है वो अलग अलग है बट वो शेप उनका सेम है, मीन्स ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। अगर शेप सेम है और साइज डिफरेंट है तो हम वैसे फिगर्स को सिमिलर बोलते हैं। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सिमिलरिटी। नाउ हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट बेसिकली ऑन द वन important topic, that is similarity of triangle. So now let us come to the main topic here, that is similarity of triangle. Now as I told you that similar figures are figures whose shape is same but the size is different. So here we can say कि हमारे पास दो ट्राइंगल है, ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं बट इनकी साइज जो है वो डिफरेंट है। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जब हम किसी एक जो होगा वो छोटा होगा और एक बड़ा होगा, अगर इक्वल होते तो वो बराबर साइज के होते। अब यहाँ पर एक छोटा और एक बड़ा है, अगर हम इस स्मॉलर फिगर को बिगर फिगर के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे तो ये शेप कुछ ऐसी बनेगी। हमने इसको यहाँ पे प्लेस किया तो ये ऐसा बनेगा। नाउ क्लियरली देयर इज सम गैप इन बिटवीन। तो ये जो छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल है इनके एरिया में कुछ डिफरेंस आएगा, विच प्रूव्स दैट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नाउ whatever we are observing here, this is related to the similarity। जब हम किसी सेम शेप के फिगर को ओवरलैप कराने की कोशिश करेंगे तो वो ओवरलैप नहीं होंगे क्योंकि उनकी साइज डिफरेंट है। इन सच ए केस these two figures will be similar। Now let us come to the similarity of triangle। So if we talk about the similarity of triangle, let us we can write, let us take two simple examples directly, like I am taking here two triangles, let me call it ABC and PQR। हमारे पास दो ट्राइंगल्स है ABC और PQR। इन दोनों ही ट्राइंगल में अगर हमारे पास जो इनका शेप है वो तो ट्राइंगल है और इनकी साइज जो है वो डिफरेंट है, देन ओनली वी कैन कॉल देम सिमिलर। एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इफ वी आर एबल टू प्रूव इट दैट दीज आर सिमिलर। In case of congruency, what you must have written, it is like this, it is the sign of congruency, but here in similarity just you have to mention like this। तो आपके पास सिंबल एक ऐसा सिंबल है and this is the sign of similarity। So this is how we write if two triangles, here triangle ABC is similar to triangle PQR। So this is how we discuss about
the uh, similarity of two triangles.